जी आस्किया, शुरू करें। जी मैडम। हम्म। आई मीन मैडम जो केस आपने प्रेजेंट करना है, जो आपका केस है, केस सिनेरियो बेसिकली वो आप शेयर करें। मैडम मैं खुद दूं केस आपको? जी जी बिल्कुल दे दें, वरना फिर मैं तो मुश्किल वाला ही दूंगी। मैडम मेरे पास तो बस अभी तो मुझे अभी मैंने कोई ऐसा अभी केस मैंने लिखा नहीं था, लेकिन मेरे पास वही केस है जो अभी एग्जाम में भी आया था। क्या था? कि मैडम पेशेंट जो था वो उसको प्राइमरी कपल जो थी उसकी 2 इयर्स की अनएक्सप्लेन्ड 3 इयर्स की अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी थी। और हम्म। जो था वो फीमेल्स की सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थी, जो कि एग्जामिनर ने प्रोवाइड की हुई थी ऑन द टेबल। और जो था वो क्या कहते हैं, जब हिस्ट्री ली थी तो उसमें कपल में जो था वो डायग्नोसिस उसका बना था ओलिगो टेरेटोएस्टिनोजोस्पर्मिया। ओके, दैट इज अ डिफरेंट केस। ठीक है, जब हम इनफर्टिलिटी विद फाइब्रॉइड डिस्कस करते हैं तो जाहिर है वो एक डिफरेंट केस बन जाता है। तो हम्म। इसमें फिर आप केस अपना लिख लें। A जी 20 मैडम। years old couple married for 20। last 28 years old couple, female, 28 years old female, married for last 3 years जी मैडम। with diagnosed fibroid uterus हम्म। but no symptoms। फाइब्रोइड के उसको कोई सिम्टम्स नहीं है। और नाउ शी हैज कम फॉर द वर्कअप एंड द ट्रीटमेंट ऑफ सब फर्टिलिटी। ठीक है, ये ओके। आपका केस है। ओके। डायग्नोस्ड केस उसका फाइब्रोइड है, जो उसको पता चला, किसी डॉक्टर को दिखाया एग्जामिनेशन पे भी और अल्ट्रासाउंड पे भी। बस ये है आपका केस। Okay, madam. So this is a structure, like a structure discussion or case discussion. स्ट्रक्चर डिस्कशन। Okay. आई विल Uh, आस्क यू क्वेश्चन एंड यू विल आंसर इट। okay, madam. हम्म। So shall I start? जी जी बिल्कुल। Okay. तो हाउ यू विल Uh, एवेल्युएट दिस पेशेंट? ठीक है, ये पेशेंट आपके पास आई है इनफर्टिलिटी के लिए, तो इसकी अब इनिशियल एवेल्युएशन आप कैसे करोगे? बस sir, ये आके आपको बताया कि मुझे डॉक्टर ने फाइब्रोइड यूट्रस बताया है, और ये बाकी okay. उसका सिम्टम्स वगैरह कोई नहीं है, वो तो आप हिस्ट्री पे भी खैर पूछ लोगे। और अब वो वर्कअप और ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी के लिए आई है। Okay, madam. After mutual introduction with the patient, I will and confirming her the given details. I will inquire the missing details from her biodata. I will ask the female, my female patient, whether she wants to include her husband in the discussion or not, and if she allow her husband to include in the discussion, I let her. So then I will inquire the couple how long they have been married for, and are they living together since their marriage, and is their first marriage or both the partners first marriage, and are they having during this period since their marriage time, are they having the regular sexual intercourse? And then I will proceed with a detailed history of the female partner. I will inquire her current menstrual cycles and her previous menstrual cycles. That is what is the age of the menarche, and the duration of the bleeding, and for how many days she is having the bleeding, and how many pads she is soaking per day, and whether there is a history of passage of clots, and the cycles are regular, occurring after regular intervals. Is there any history of the pain before the menstruation, severe pain during the menstruation, and even after the menstruation? Is there any history of intermenstrual bleeding or post-coital bleeding? And then I will inquire the couple whether the female's pap smear test has been done yet, and if done, what was its report. Then I will inquire about her previous cycle were the same as a pattern, or it was a different one from this. Then I will go for the history of the male partner, from the male, either the male partner if present, and if not, then from her female partner, that what is the age of the male partner, and what is his height and belt, and
has he is having the male pattern of the distribution of the hair and his muscle mass, and then what is his occupation, and is the male partner having any history of childhood history of fever or mumps, or any history of surgery over the groins, the orchidopexy, or is doing any gym, or is using any anabolic steroids or any Hakimi medicine, or the male partner work is associated with excessive sitting, or he's using hot baths, excessive hot baths, or whether in then I will inquire any further history of chemotherapy or radiotherapy. Then for both the couples, I will inquire their past medical history, any history of diabetes, hypertension, or thyroid disorder in both the couples, and any history of intake or drug allergy in both the couple, any allergy, whether the couple is smoking, using alcohol, or any other drug of addiction, and are they living, then their detailed coital history, whether there is any history of the dyspareunia, so the superficial dyspareunia or the deep dyspareunia, and then any history of retrograde ejaculation, then whether they're living together and like cooperative, and social support available or not. Then I will, madam, proceed with the examination of my patient. Okay, so far in the history, how you will review your history? आपने जो सारी हिस्ट्री हमें बताई, जो उसकी salient features in the history which you need to ask her, Sir, उसमें आप अगर रिव्यू madam, करें अपने आप madam, को तो क्या? Madam, one thing again, I will miss one point again. I will ask the couple whether they have any treatment of the infertility taken yet, and if they have taken any treatment, what was that treatment, and the semen analysis report. If the female partner and the male partner has a semen analysis report of the husband available, and what is its report? ओके देखो, इसमें जो हिस्ट्री है ना, अब इसमें अगेन वही बात बार बार आ जाती है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं बाकी ऑडियंस से भी ज़रा ये पूछना चाहूँगी कि इनकी हिस्ट्री को अगर आप रिव्यू करें तो हाउ यू विल रेट इट? एनीवन? मैडम जी मैडम मैं बताऊं। जी मैडम जी इन्होंने जो बताइए। मेल हिस्ट्री को इतना डिलीट किया है, उसे डिलीट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा पॉइंट ये था कि हमने फीमेल सब फर्टिलिटी को डिस्कस करना था विद फेब्रॉइड के साथ, और एग्जामिनर्स के पास क्वेश्चंस हैं। तो उसका हम्म मेल का इतना पूछ लेना कि अदर ऑल मेल इन्वेस्टिगेशंस आर डन एंड नॉर्मल, तो वो इनफ होता है। हम्म ठीक है। उसमें बेसिकली यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ। ठीक है आसिया, बेटा आपसे बात कर रही हूँ। जी जी यू हैव मैडम, मैं टू बी, सुन। हाँ यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ इन योर हिस्ट्री, क्योंकि इसमें जो सेलिएंट फीचर्स होती हैं ना, देखो आपको हिस्ट्री में एक हमने चीज बता दी है कि फाइब्रोइड यूट्रस के साथ आएगी, और ये भी साथ बता दिया कि वो ये सिम्टोमेटिक है। ठीक है, उसमें फिर भी सारे सिम्टम पूछना, और ये सारा एसिम्टोमेटिक का मतलब ये है, ये एक कंपोज्ड वर्ड है जिसका मतलब ये है कि उसको कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी नहीं है, कोई ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स के जो फाइब्रोइड रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ आप ये पूछोगे लिविंग टुगेदर, ठीक है पूछ लिया, क्योंकि बेशक फाइब्रोइड यूट्रस है उसमें, अभी तो हम बताएंगे कि फाइब्रोइड है कहाँ पे। हो सकता है कि फाइब्रोइड ऐसी जगह पे हो जो फर्टिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा होता, तो उसमें साइड बाय साइड आप कोई और उसको कोमॉर्बिडिटी का पूछ लोगे, या हस्बैंड का कि उसकी इवेल्युएशन हुई हुई है या नहीं हुई, बस सिंपल एज दैट। ठीक है। ठीक और ये ठीक। हिस्ट्री आपकी ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, ये भी मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि यू हैव मैडम, जस्ट 10 मिनट्स। मैडम इसमें भी फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है या वो नहीं लेनी? नहीं देखो, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री एज टोल्ड बाय द पेशेंट एवरीथिंग इज नॉर्मल। यानी अगर ए सिम्टोमेटिक बताया तो वो ए सिम्टोमेटिक का लफ्ज इन सब चीजों को कवर कर लेता। अगर फर्ज किया ये ए सिम्टोमेटिक वाला लफ्ज ना होता, क्योंकि सबसे पहले आपने क्वेश्चन पे गौर करना होता है। फाइब्रोइड है, पेशेंट ए सिम्टोमेटिक है, सिर्फ उसको सब फर्टिलिटी का इशू है, तो लिविंग टुगेदर बेशक पूछ लो, और हस्बैंड की एवेल्युएशन भी, आई मीन कि उसका उसके टेस्ट हुए हैं या नहीं हुए, उससे भी पता चल जाएगा। और अगर उसका टेस्ट हुआ हुआ है तो दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, कि इसमें कोई और मसला कभी नहीं हुआ। ये सारी चीजें आप अनएक्सप्लेन में पूछते हैं। ठीक ठीक है। तो यहाँ तो आपको डायग्नोसिस दिया हुआ था, तो यू ठीक हैव है टू मैडम। बी वेरी ब्रीफ, जस्ट फोकस्ड हिस्ट्री, फोकस्ड हिस्ट्री।
को अमूमन हमारे स्टूडेंट नहीं समझते, और इसीलिए जो क्लिनिकल केसेस होते हैं वहां पे भी ये चीज मसला करती है फिर उनको, कि वो फोकस्ड का मतलब है सिर्फ एक डायरेक्शन में जो चीज आपको दी हुई है सिर्फ उसी से रिलेटेड पूछे। दाएं बाएं फैलाने में तो आप आधा घंटा भी हिस्ट्री लेते रहें तो कम है, तो वो आपने नहीं करना। आप जी कोशिश करें कि आपके सिर्फ 1-2 मिनट आगे इतने सारे क्वेश्चन है, वो कैसे आप आंसर करोगे? जी 3-4 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लग गए तो। जी। ठीक है, चलो जी। आप अस्सलाम वालेकुम। एग्जामिनेशन पे क्या, एग्जामिनेशन पे कोई और अगर मैं इसमें कोई बताना चाहता है तो बता दें। मैम सॉरी, क्वेश्चन था मैम, इसमें वो हम बाकी जो फर्टिलिटी के काजेज है उसको साथ में रूल आउट करेंगे पेशेंट। इसमें देखो, इसमें अब चूंकि एसिम्टोमेटिक है, अब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ या एग्जामिनेशन हुआ तो पता चला, लेकिन और क्या टेस्ट हुए उसकी ओवुलेशन से रिलेटेड या फॉलिकल मैचुरेशन से रिलेटेड, ये और हस्बैंड के क्या टेस्ट हुए, ये तो बहुत जरूरी है ना, या उसने कोई ट्रीटमेंट पहले ली या ना ली। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि फाइब्रोइड कितना बड़ा है, कहाँ पे है, तो ये तो हमने पूछना है कि उससे पहले हमेशा इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में हमेशा आप ये पूछते हैं कि आपके पास आने से पहले उसके टेस्ट क्या हुए और वो ट्रीटमेंट क्या क्या ले चुकी हुई है। एटलीस्ट वी नो कि ये ट्रीटमेंट इसको मिली और फिर ना अफेक्ट हुआ उसका। तो अगर रिपीटेडली ओवुलेशन इंडक्शन वो लेती रही है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, देन डेफिनेटली बहुत सारी और रीजंस भी जहन में आती हैं, क्योंकि आगे चल के जब एग्जामिनर आपको ये बताएगा कि फाइब्रोइड किस जगह पे है और कितना बड़ा है, तो वहां आप उसको लाइन आउट कर सकते हो कि अब इतने फाइब्रोइड, इस तरह के फाइब्रोइड के साथ या कितने मल्टीपल फाइब्रोइड हैं या इस साइज का है, इस लोकेशन पे है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि ऑलरेडी पेशेंट ने ये ट्रीटमेंट ली, तो अब आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे करना है। या हो सकता है वो ये कहे कि मतलब उसमें एक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता था लेकिन वो 3-4 दिन के बाद वो हो जाता था, यानी फेल्ड इम्प्लांटेशन जो होती है, और इम्प्लांटेशन फेलियर जो है, या बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, तो वो भी तो एक चीज हो सकती है ना इसमें। तो उससे भी आपको अंदाजा होगा कि ये क्या, इसमें आगे हमारा प्लान ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है, चले आगे मैडम जी। मैडम मैं बता दूं मैडम एग्जामिनेशन हाँ जी जी, बताइए। एंड नाउ आपको क्लियर मैडम अबाउट के आपको क्लियर है ना कि जो सवाल होता है Yes, उसके madam. मुताबिक Yes, उसका madam. जवाब I, देते I, हैं। I will be focused, madam. ओके। Now I will proceed with the examination of the female partner. I will look for her weight and height, calculate her BMI, check for the blood pressure, pulse, temperature, respiratory rate, check for the pallor, jaundice, and the cyanosis, dehydration, any enlarged lymph node, any palpable thyroid gland. Then I will go for the superficial deep palpation the breast for any mass or any discharge. Then I will go with the abdominal. I will go auscultate the chest and do the respiratory and cardiovascular system examination for the heart sounds and the respiratory sound or any added sound present. Then I will go for the abdominal examination for the inspection of the abdomen or for any bulge, any pulsation, visible stria marks or position of the umbilicus, and then do superficial and a deep palpation for any mass palpable or any tenderness in any area of the quadrant. And then I will proceed with the bimanual vaginal examination for the size of the uterus and the mobility of the uterus, position of the uterus, the tenderness and the fornices, any fullness in the fornices or the tenderness in the fornices or the evidence of the bleeding per vaginum or the vaginal discharge present. ओके, हियर आई टेल यू द पॉजिटिव फाइंडिंग। जब आपने पेशेंट का बाकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एवरीथिंग इज ओके, बट ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यू फील अ mass in the lower abdomen of at least 18 to 20 week size। ठीक है, bimanual examination पे the mass cannot be separated from the uterus, however there is mild tenderness in the right nexa। ठीक है। Right, Erin. Okay, madam. Madam, uterine size. 18 to 20 week size। Madam, uterine size is Basically, there is a mass which is attached with the uterus. Uterus, you cannot separately feel the mass separate from the uterus. वो उसके साथ ही attached है। all ठीक right, है? Erin. There is no Okay. tenderness. There is no tenderness. It is firm in consistency, mobile from side to side, and ये है इसका। And with और the मैडम राइट एडेन एग्जाम में मैडम फुलनेस है fullness नहीं, मैंने tenderness की बात की है। fairness okay madam then on the basis of the examination findings you gave madam lower limit of the mass is reachable No,
not reachable. So it Hmm. seems to be arising from the pelvis. Madam, on the basis of the examination findings given, should I proceed with the differential diagnosis? Hmm. On the basis of the history findings and the examination and the findings the findings about the mass, my differential diagnosis in this patient is number one is fibroid uterus, benign pathology of the uterus, that is a leiomyoma uterus, and number two is the benign pathology of the ovary. Okay. But which one seems to be more probable in this case This is after your leiomyoma. Leiomyoma, because she's a diagnosed fibroid uterus, so this is the leiomyoma. चलो आगे ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की तरफ प्रोसीड करें, क्योंकि Madam, एवेल्युएशन में देखो ये तीनों चीजें आती हैं। हिस्ट्री एग्जामिनेशन बेसिकली बाज दफा एवेल्युएशन से इन्वेस्टिगेशन को अलहदा कर लिया जाता है, लेकिन बेसिक एवेल्युएशन इज बाय हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, जिसके बाद फिर आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा जाता है एंड देन कम्स द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज यू हैव टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में Madam, I would like to have the complete blood picture with the TLC count and ठीक है, आप बेसिक आप जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन है उसको हम बाईपास कर देते हैं इस वक्त। बेस लाइन okay, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। okay. आगे Among the specific investigations, madam, the TVS, no, madam, detailed abdominopelvic ultrasound of this patient. वाई एब्डोमिनल पेल्विक? Madam, if ideally, to madam, if MRI available, then it would be the ideal investigation, because I have to classify this fibroid, which type of fibroid, this type of like 0, 1, 2, 3, 4, the classification of the fibroid. For this, I need. Can it not be made on ultrasound alone? Madam, it's better evaluated on the TVS ultrasound and the MRI. MRI pelvis. तो हर पेशेंट का एमआरआई करना जरूरी है क्या? मैडम हर दिस पेशेंट जो पेशेंट फाइब्रोइड के साथ आता है, मैडम इस पेशेंट का करना चाहिए, बिकॉज इसकी जो है वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, तो इसमें मुझे हर चीज सही से पता होने के लिए कि आई मस्ट हैव द क्लियर नॉलेज ऑफ द पैथोलॉजी ऑफ माय पेशेंट, एक्सटेंट ऑफ द मास एंड व्हाट्स इट्स एक्सटेंट लाइक इन द pelvis, so it would affect my management of the infertility, so I must be having the MRI pelvis of this patient. बाकियों का क्या ख्याल है? एमआरआई नीडेड और नॉट? मैम एमआरआई तो सिर्फ तब करवाएंगे ना कि अगर हमें डायग्नोसिस इनकंक्लूसिव है या हमें अगर डायग्नोसिस में उसको कंफ्यूजन हो तो अल्ट्रासाउंड तो एमआरआई नहीं सिर्फ मिलेगा। उस वक्त करवाते हैं। एमआरआई इज नॉट अ रूटीन एंड बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस फॉर एवेल्युएशन ऑफ फाइब्रॉइड इफ इट इज क्लियरली डॉक्यूमेंटेड ऑन अल्ट्रासाउंड। एक अच्छा अल्ट्रासाउंड जो है वो काफी होता है, उसके लिए एमआरआई की जरूरत नहीं होती। दिस इज ओवर यूज ऑफ अ फैसिलिटी। मैडम सॉरी, यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने मुझे जो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स दी हैं उसमें आपने मुझे दिया है कि मास के मैंने नॉट भी बी। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग बेटा आपको दी ही नहीं। अच्छा मैडम, मैंने तो ओके। सिर्फ आपको जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग थी मैंने वो बताई थी कि 18 to 20 वीक साइज मैस है। ओके मैडम, ओके मैडम, नाउ ठीक है, आई वो वुड अल्ट्रासाउंड तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, मैडम क्योंकि आपने अल्ट्रासाउंड इसमें चाहिए पहले। एमआरआई डाल दिया एज अ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, जिससे कि नहीं नहीं मैडम उसमें सॉरी, अभी कंट्रोवर्सी पहले तो एग्जिस्ट मैडम करती स्पेसिफिक पे सबसे पहले मैडम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड पेल्विस। मैडम यस, अल्ट्रासाउंड पेल्विस ओनली। जी 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 मैडम आपने जी एग्जामिनेशन के ऊपर 18 into 20 वीक साइज दिया था, तो इसमें जी तो जी बिल्कुल। एब्डोमिनल पेल्विक स्कैन ठीक है, टीवीएस तो हम पेल्विक इसके लिए करते हैं ना, मैस के लिए जब छोटा हो। बेसिकली बड़े मैस में भी जो होता है टीवीएस हम इसलिए करते हैं कि कुछ जो होते हैं ना सब म्यूकस फाइब्रोइड्स वो ज्यादा बेहतर एवेलुएट होते हैं ऑन टीवीएस, वरना इतना बड़ा मैस अगर हो तो वो हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे भी पता चल जाएगा, ट्रांस एब्डोमिनल। ठीक है, जी मैडम। लेकिन इन्होंने एक लफ्ज बोला था जिसमें मैंने कहा था कि क्यों करवाएंगे एब्डोमिनो पेल्विक। एब्डोमिनो पेल्विक मीन्स के एब्डोमिन को भी हम एवेलुएट कर रहे हैं। Why not pelvic only and why abdominal as well? मैडम मैंने मास साइज की वजह से ही बोला था, बिकॉज मास इज ग्रेटर देन 14 वीक्स। Okay, then what are you anticipating with the big mass?
मैडम बिग मास के साथ मुझे मैडम किडनीज की इन्वॉल्वमेंट भी उस पे पता चल जाती है कि उसमें जो है वो किडनी मतलब जो तो यूरेटर या केयू भी आप किडनी। बताओ ना कि उसमें किडनी यूरेटर्स को आप एवेलुएट कर रहे हो बिकॉज इट्स इन लार्जर इन साइज, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक के एब्डोमेन में आप क्या देखना चाह रहे हो, लिवर को भी, स्प्लीन को भी, किडनीज, इतनी सारी चीजें हैं एब्डोमेन में। तो मैडम इस सारे, पेशेंट में तो ना मैडम मुझे सिर्फ किडनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ और तो प्लस बस जो पूरा फिर मास है। आप इसको स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड प्लस केयूबी। क्योंकि एब्डोमिनल में आपने बताना है कि फॉर किडनी एंड यूरेटर्स ब्लैडर्स एंड इन द पेल्विक फॉर द evaluation of the size, site and location of the fibroid as well as the Doppler flow of it and the endometrial cavity, ये सारा कुछ आपने ये बताना है। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी फाइब्रोइड मैपिंग, ठीक है। फाइब्रोइड मैपिंग मैपिंग का मतलब ये है कि आपने एग्जैक्टली उसकी साइट साइज अकॉर्डिंग टू द फीको क्लासिफिकेशन ये आपने डिटरमिन करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट प्लान ऑफ मैनेजमेंट। मैडम इसको बोलेंगे कैसे? पेल्विक अल्ट्रासाउंड विद कलरफुल डॉपलर एंड फाइब्रोइड मैपिंग। फाइब्रोइड मैपिंग, उसका साइज, उसकी साइट, उसका डॉपलर फ्लो, ये सब चीजें, एंड एंडोमेट्रियल कैविटी की भी आप करते हो जो कि ट्रांसवेजाइनल पे ज्यादा बेहतर एवेलुएट होती है। एंडोमेट्रियल कैविटी को जब भी आपने एवेलुएट करना है, इसकी थिकनेस से रिलेटेड या इसकी डिस्टॉर्शन से रिलेटेड या उसका मायोमेट्रियल एंडोमेट्रियल जंक्शन से रिलेटेड चीजें, ये सब चीजें अल्ट्रासाउंड, एक अच्छा अल्ट्रासाउंड उसको बता देता है। वो सारी चीजें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे हमेशा बेहतर एवेलुएट होती है एज कंपेयर टू द ट्रांस एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो मैडम इसमें टीवीएस और पेल्विक दोनों करेंगे? जी बिल्कुल आप करोगे, क्योंकि पेल्विक तो आपने एब्डोमिनल तो करना ही करना है फॉर के यू बी, जी ठीक है। ओके, जी। अब इसकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग मैं आपको बताती हूँ। ऑन अल्ट्रासाउंड देर इज अ 5 सेंटीमीटर सब एंडोमेट्रियल मास ऑफ FIGO 1, ठीक है। ये सब। 5 सेंटीमीटर है ऑफ FIGO 1। ओके। ये FIGO 1 के का क्लासिफिकेशन के मुताबिक 5 सेंटीमीटर का है। सब म्यूकोजल या सब एंडोमेट्रियल आप कह लो, वो वाला है। दूसरा है इंट्राम्यूरल, अगेन ऑफ 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर आप समझ लो। ये इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड है जो कि उसकी एंटीरियर वॉल में है। दिस इज FIGO 4, फीको इंट्राम्यूरल जो है, 4। ये FIGO 4 है, ओके। ठीक है। और बाकी जो एक लार्ज तकरीबन 13 सेंटीमीटर का फाइब्रोइड है विच इज ऑफ FIGO 6, ओके FIGO मैडम। 6, ठीक है। इसमें अब आप कैसे पेशेंट को काउंसल करोगे विद दीज 3 फाइब्रोइड जो कि आपको डिटेक्ट हुए ऑन अल्ट्रासाउंड और क्लियरली डिटेक्ट हो गए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी MRI की। जी मैडम। हम्म। मैडम पेशेंट यंग है, 28 ईयर है और उसको प्राइमरी। मैडम हस्बैंड सीमन एनालिसिस रिपोर्ट नॉर्मल है? यस दैट इज नॉर्मल। Okay. Madam, I will counsel the couple. I will counsel the couple that this couple, the female partner, is having the benign pathology of the uterus, that is a leiomyoma, and she is having 3 big fibroids in her uterus. And I will counsel them that with this scenario, there is a difficulty in there will be a difficulty in the conception and in having the pregnancy. And first she needs to be detailed evaluated for these fibroids. And these fibroids they must be removed surgically. Then the couple can proceed with the fertility for the conception. And for the surgical removal of this fibroid, after preparing the patient for the surgery, the mode of the surgery is best in this patient is myomectomy. हम्म, ठीक है। Myomectomy. And this आप मरीज myomectomy, को it can बताओ be कि क्या, ठीक है। it can be the open myomectomy or it can be laparoscopic assisted myomectomy. आपने पेशेंट को काउंसल करना है अबाउट द मैनेजमेंट, वो कहती है बताएं आप मेरे लिए क्या सही है। Madam, I will counsel them about the surgical treatment, that is the myomectomy.
नहीं नहीं, ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट पे एग्रीड, वो भी एग्री हो जाती है कि ठीक है इतने बड़े बड़े फाइब्रोइड हैं, तो इसमें जो है वो ठीक है सर्जरी करनी है, बट थ्रू व्हाट रूट? Madam, first, the female partner will be completely evaluated before the surgery for her all baselines. That is, the hemoglobin should must be optimized. Then all the वो तो fertility. सारा मैंने बता दिया ना, बेस लाइन पे सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक का Madam, मतलब है and ये तो भी for ठीक है। the for before this and during the surgery, I will नहीं बेटा counsel. देखो, इसमें जो मेरा सवाल था ना वो ये कि वो कहती है अच्छा लेप्रोस्कोपी इसमें सही रहेगी या लेप्रोटमी सही रहेगी? जी अच्छा मैडम, मैडम इसमें जो इस इन दिस पेशेंट मैडम द फिगो 6 जो है वो 13 सेंटीमीटर है। इन दिस पेशेंट इफ द फैसिलिटीज अवेलेबल एंड एक्सपर्टाइज अवेलेबल देन लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी विल बी feasible in this patient. हमारे बाकी ऑडियंस का क्या ख्याल है? मैडम 13 मैम इसमें ओपन सेंटीमीटर ज्यादा बेटर है, सॉरी मैडम ओपन ओपन मायोमेक्टमी करेंगे नहीं करेंगे, लार्जर तमाम फाइब्राइड्स हैं होते और हैं। ओपन मैडम करेंगे इस क्योंकि जी जी। पेशेंट को मैम फर्टिलिटी की डिजायर है, और इसमें क्या एडहेरेंस को प्रिवेंट मतलब हम लेप्रोस्कोपिकली इतना ज्यादा वो उसको सिक्योर नहीं कर सकेंगे, तो पेशेंट अभी इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है, तो हम हम्म। प्रेफर करेंगे इसमें ओपन मायोमेक्टमी इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज A1 If I फिगो say 4 है, that 1 फिगो compare 6 है। लेप्रोस्कोपी वर्सेस ओपन लेप्रोटमी, तो इसमें क्या जस्टिफिकेशन आप क्या दोगे? ठीक है मैडम इनफर्टिलिटी तो है ही है उसकी, मैम व्हाट इसमें आर मैडम द लेप्रो प्रोज एंड मैं कॉन्स ऑफ इट? साइज डिफिकल्ट डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमने इसमें वो उसको निकालना होता है, चंक्स में मोर्सिलेशन के थ्रू निकालना है। लेप्रोस्कोपी वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर होगा और एज कम्पेयर टू ओपन मायोमेक्टमी। हम्म। बेसिकली इसमें थोड़ा सा अब प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं, क्योंकि इसमें अब देखो तीन जगह पे है, 5 सेंटीमीटर का सब म्यूकोजल है, 5 सेंटीमीटर का ही इसका इंट्राम्यूरल है, और 13 सेंटीमीटर का इसका फीगो 6 है, जो सब म्यूकोजल में सब सिरोजल में ही आ जाता है। तो इतने सारे फाइब्रॉइड, अब जो सब सिरोजल है वो समझो फंडस पे है, और जो इंट्राम्यूरल है वो एंटीरियर वॉल्व की हमने बात की थी, और जो सब म्यूकोजल है उसको भी हम कह सकते हैं पोस्टीरियर वॉल में, सब म्यूकोजल को, ठीक है, टू मेक द केस अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक। तो ये डिफरेंट वॉल्स पे हैं, सो इसको जो है वो फिर निकालना थ्रू लेप्रोस्कोपिकली विल बी अ रियल चैलेंज। मतलब इसमें ठीक है लेप्रोस्कोपी वाले तो कर सकते हैं इसमें, लेकिन जनरली स्पीकिंग द एक्सपर्टीज आर नॉट वेरी मच अवेलेबल इन मैनी सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स में नहीं है। तो इसमें जो ज्यादा हमने बेसिकली जब हम मायोमेक्टमी करते हैं, खास तौर पे सब म्यूकोजल जब हम निकालेंगे, तो थ्रू एंड थ्रू ऑफ द होल मायोमेट्रियम यू हैव टू रीच एट दैट सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड टू रिमूव इट, क्योंकि इसमें अगर साइज उसका 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली उसको निकालना पड़ेगा, वो सबसे अहम है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। इंट्राम्यूरल भी अगर 5 सेंटीमीटर 4-5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा हो तो भी वो बहुत सारी चीजों में इम्पेयर कर सकता है इन द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सब म्यूकोजल का इतना तो रोल नहीं है, लेकिन जब हम ओ साइट रेटिवल करते हैं तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो, बड़े सबसिरोजल फाइब्रोइड की वजह से भी वो एक टेक्निकल बैरियर्स आ जाते हैं, तो इसलिए उसका भी निकालना जरूरी है। सो इन माय ओपिनियन इन दिस पर्टिकुलर केस ओपन मायोमेक्टमी विल बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि जब आप पूरी की पूरी मायोमेट्रियम को काट के जाते हैं अंदर, तो उसमें अब ये जो फीगो 1 वाला है, अब दूसरी बात ये है कि क्या हम इसको भी लेप्रोस्कोपी से ही निकालेंगे? इसमें मैडम, देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट। मैडम इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछना था कि जी ये जो हमारा फिगो 1 है, ये हम स्टेरोस्कोपिकली भी तो यस निकाल यस, सकते हैं? ये मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें अब अगर स्टेरोस्कोपी की आपके पास फैसिलिटी हो एंड यू आर ट्रेन फॉर इट, क्योंकि इसको हम लेप्रोटमी से तो तब निकालेंगे, अब लेप्रोटमी से निकालने का नुकसान होगा, चाहे वो लेप्रोस्कोपी से हो चाहे वो लेप्रोटमी से हो, सब म्यूकोजल में, और खास तौर पे जब फीगो 1 है, फीगो 2 हो तो फिर हम उसमें क्लेम कर सकते हैं कि लेप्रोटमी में हम निकालें। लेकिन फीगो 1 वो है जिसका काफी हिस्सा, मोर देन 50% इज प्रोट्रूडिंग इन टू द एंडोमेट्रियल कैनाल,
So it is easily accessible and approachable through hysteroscopy method. Hysteroscopically हम इसको निकाल सकते हैं, और इसमें इफ द एक्सपर्टीज आर अवेलेबल, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज अवेलेबल, और आप रूटीन में उसमें रिसेक्टोस्कोप के जरिए आप उसको कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये है कि आप इसको पहले GnRH एनालॉग्स दे के 1-2 साइकिल तो आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो साइज में। लेकिन ये 5 सेंटीमीटर का फिगो 1 का, अब 5 सेंटीमीटर वाला जो एक है साइज है, वो थोड़ा सा उसमें बॉर्डर लाइन वाले में आ जाता है हिस्ट्रोस्कोपी से निकालने के लिए, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि इसमें 3-4 सेंटीमीटर का भी हो तो आसानी से निकल आएगा, जितना बड़ा फाइब्रोइड होगा उतना ही निकालना उसमें मुश्किल होता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी अगरचे प्रेफर्ड चॉइस है, क्योंकि इसमें पूरी मायोमीट्रियम हमें डिसेक्ट नहीं करनी पड़ती, तो उसमें वो एक प्रेफर्ड चॉइस है हिस्ट्रोस्कोपी। लेकिन साइज बड़ा है, एनीवे यू कैन टेक इट आउट बाय द रिसेप्टोस्कोप। और इसके अलावा एक और टेक्निक होती है जो हम सब म्यूकोजल फाइब्रोइड के लिए यूज करते हैं, विच इज बेटर देन हिस्ट्रोस्कोपिक डिसेक्शन। वो क्या है? हैव यू एवर? मैडम सर्जिकल टेक्निक है कि ये आप नहीं ऐसी नहीं नहीं नहीं, ये नॉन सर्जिकल टेक्निक है। मैडम MRI गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड बीम्स? ये MRI गाइडेड भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी गाइडेड हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सोनाटा। ठीक है, इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड है जो एक जिसमें हम ट्रांसविजाइनली हम उसमें एक प्रोब फिट कर देते हैं इनटू दैट मैस, और उसका मायोलाइसिस हो जाता है बाय द हीट। ठीक है, ये सोनाटा, ये टेक्निक वैसे अवेलेबल भी है लाहौर में। तो ये सोनाटा टेक्निक है, अगर ये अवेलेबल हो तो दैट इज बेटर इवन देन द हिस्ट्रोस्कोपिक डिसेक्शन। क्योंकि देखो, जब आप हिस्ट्रोस्कोपिक डिसेक्शन करते हो और ये वो बड़ा मैस हो, जस्ट लाइक 5 सेंटीमीटर, यूट्रस का अपना साइज पूरा, अगर जब वो इनलार्ज हो जाता है फाइब्रोइड के साथ भी, इसमें तो इंट्राम्यूरल भी है, लेकिन अगर फाइब्रोइड का साइज देखो तो 7-8 सेंटीमीटर ही होता है अमूमन, और एक नली ग्रेविडा में तो 7 सेंटीमीटर तक ही होगा। उसमें 5 सेंटीमीटर का इतना बड़ा फाइब्रोइड अगर हो तो डेफिनेटली दैट इज अ ह्यूज फॉर सम म्यूकोजल। तो वो सोनाटा के साथ जैसे आप मायोलाइसिस किसी में भी, इवन इंट्राम्यूरल में भी कर सकते हो, और जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड या MRI गाइडेड जो टेक्निक्स होती हैं वो सारी की सारी की जा सकती हैं। लेप्रोस्कोपी से, इवन लेजर के साथ भी आप इसको कर सकते हो। डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ दैट टेक्निक्स, क्योंकि लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के लिए इज मोर कॉमनली अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्रोस्कोपी जो ज्यादा कॉमनली अवेलेबल है, इसमें उसके फिर हमें प्रोज एंड कॉन्स भी देखने पड़ेंगे कि उसमें इवन इंट्रायूटेरिन रीजन। सॉरी मैडम, वन क्वेश्चन। मैडम, आपने ये जो सोनाटा का बताया है तो इसका मैंने पढ़ा था, तो इसमें उन्होंने लिखा था कि इससे फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। डेफिनेटली वो इसमें उसके भी अपने रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की बात करते हैं, उसमें भी फर्टिलिटी होती है, बट स्टिल इट इज डन। लेकिन सोनाटा के साथ हम सोनाटा में किसी चीज को ब्लॉक नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसकी मायोलाइसिस कर रहे हैं। अब मायोलाइसिस करने के बाद पेशेंट को एब्डोमिनल विजाइनल ब्लीडिंग, उसका डिस्चार्ज, उसकी स्कारिंग उस एरिया की, ये सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, और ये हिस्ट्रोस्कोपी से भी होती हैं। यानी हिस्ट्रोस्कोपी के साथ भी ये सारे मसले हो सकते हैं, बल्कि 10% में जिनमें आप हिस्ट्रोस्कोपी के साथ कर रहे होते हो, 10% में तो एशरमैन सिंड्रोम उसमें एडिहेरेंस बन जाती हैं। इसी वजह से अगर आप हिस्ट्रोस्कोपी से कर रहे होते हो तो आपने उसके अंदर वो सारी जेल डालनी होती है जो हाइड्रोजेल होती है, हाईबेरी जेल वगैरह, जो कि एडहेरेंट प्रिवेंशन है, वो डालनी होती है, या फिर आप ईस्ट्रोजन बाद में देते हो, या आप उसमें कोई बैलून डाल देते हो, या आप उसमें IUCD रख देते हो। वही सारी चीजें जो हम एशरमैन सिंड्रोम से बचने के लिए करते हैं आफ्टर द एडहेरियोलाइसिस, इंट्रायूटेरिन एडहेरियोलाइसिस, एंड सो इज द केस आफ्टर हिस्ट्रोस्कोपी मायो इसकी डिसेक्शन जो है। तो इसमें ये प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन फिर भी इसमें कह सकते हो आपके इफ फिजिबल एंड द फैसिलिटी अवेलेबल तो आप फीगो 1 को मैनेज कर सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए। वरना आपके पास वही टेक्निक रह जाती है कि आप फिर उसको थ्रू पूरी मायोमीट्रियम को काट के और उसके बाद उसको फिर आप निकालें। ठीक है, उसमें ज़ाहिर है वो बाज़ दफ़ा यूट्राइन कैविटी भी खुल जाती है, और उसमें भी एडहेरियन का रिस्क तो होता ही है अगर यूट्राइन कैविटी खुले और आपको उसको रिपेयर करना पड़े।
तो सबसे मुश्किल वाला ये होता है, जो जीरो है वो तो बड़ी आसानी से पेडंकुलेटेड होता है, वो आसानी से निकल आता है, उसका मसला नहीं होता। एंड फीगो 1 एंड फीगो 2, दीज टू आर क्रूशियल, के इसमें फीगो 2 में तो बहुत कम हिस्सा होता है उसका, लेस देन 50% जो प्रोट्यूट कर रहा है। सो इट इज मोर डिफिकल्ट टू अप्रोच थ्रू हिस्ट्रोस्कोपी। और अगर हमने करना ही हो तो इसको फिर 2 स्टेप प्रोसीजर के साथ किया जाता है, कि आपने उसका जो हिस्सा मायोमीट्रियम में एंडोमीट्रियम में प्रोट्यूट कर रहा था आप उसको निकालें, और उसके बाद फिर उसको छोड़ दें। अगले स्टेप पे जो बाकी हिस्सा है वो प्रोट्यूट करेगा, आप फिर उसको निकाल दें। 2 स्टेप, अगेन ऑल द कॉम्प्लिकेशन एज रिलेटेड विद द हिस्ट्रोस्कोपी मायोरिसेक्शन। तो ये उसका है। अब जब ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए फिर उसके बाद जब ओपन की आप बात करते हैं, इंट्राम्यूरल है, फीगो 4 है, तो आप उसको जाहिर है अपने लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी से ही करना है। एज इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग लेप्रोटमी। तो उसको आप निकालोगे। अब जब ये आप सारी डिसेक्शन कर रही होती हो इंट्रामायोमीट्रियल की और सब म्यूकस की, आपने क्या क्या प्रिकॉशन जेन में रखनी होती है ड्यूरिंग दिस डिसेक्शन? मैडम इसमें नंबर 1 तो सबसे पहले तो ट्यूबल पेटेंसी, लाइक वो आप चेक ट्यूबल करोगे, क्योंकि वो पहले उसकी चेक नहीं हुई ना, उसको किसी ने हाँ, एडवाइस किया। ट्यूबल ठीक है। पेटेंसी चेक करूंगी। उसके बाद ड्यूरिंग सर्जरी भी मेरी एंड इन दिस इसमें फिर इस पेशेंट के मायोमेक्टमी में मेरा जो है वो होगा कि मैं मिनिमल इन्वेजिव रहूं, और ज्यादा कम से कम इवन कैविटी तक ना मुझे जाना पड़े, एंडोमेट्रियल कैविटी एंड को मैं हाउ यू विल डिस्कस। एश्योर दिस? मैडम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करूं मैडम, और जो है वो मिनिमली इन्वेजिव जैसे तो है ही लेप्रोस्कोपी। मैडम इसमें प्लॉटमी आपने तो तो हम हम मिनिमली तो इन्वेजिव तो नहीं कहते ना। मैडम हम तो ओपन पे जा रहे हैं ना, हम तो ओपन हम तो मायोमेक्टमी कर ओपन रहे कर हैं। रहे हैं ना, इसलिए हम ओपन की तो बात कर रहे तो हैं। हमारे पास एक फाइब्रॉइड जो है वो इंटीरियर वॉल पे है, और दूसरा जो है वो तो हमारा बिल्कुल ऑब्वियस फिगो 6 है, यानी वो तो हमें सामने पड़ा हुआ नजर आएगा ना। हाँ। तो वो फिगो हम्म। 6 वाला तो हमारा आराम से निकल जाएगा। और हम्म। अगर वो पिडेंकुलेटेड हुआ तो उसमें हमें और भी आसानी हो जाएगी कि हम उसका पेडिकल काट देंगे, और हम ये यूट्रस को जो है वो बिल्कुल भी फीगो 6 पेडंकुलेटेड नहीं होता, फीगो 7 पेडंकुलेटेड होता। ओके मैडम। तो फिर ये हम्म। फिर भी हमें आसानी होगी इसमें, क्योंकि फिगो हाँ। 6 है तो ये पूरा सब सीरोजल ही होगा ना, क्योंकि 6 और हम्म। 7 जो होते हैं वो कम्प्लीटली सब सीरोजल होते हैं। तो फिर हम्म। इसको हम निकाल देंगे तो हमें मायोमीट्रियम तक इतना नहीं जाना पड़ेगा। फिर हमें प्रॉब्लम जो हो सकती है वो इंटीरियर वॉल पे जो 5 सेंटीमीटर वाला है मैडम, उसमें हो सकती है। उसमें भी हम कोशिश हाँ। करेंगे कि हम हाँ। जो है वो कम से कम जो है ना वो जो इंसिजन दें उसमें, फिर वो ही हम उसको कम से कम उसको ओपन करें, और अपना मायोमेक्टमी स्क्रू लगा के तो वो और ये आप कैसे करोगे, ये आप कैसे करोगे? मैडम जो है वो इंसिजन देते हैं, वर्टिकल इंसिजन देंगे, और बोनीज हुड जो टेक्निक होती है जिसमें उसको सेपरेट इस तरह से करते हैं कि वो हुड दो साइड पे जो है वो सेपरेट हो जाती है लेयर, और एक हुड सा बना लेती है। फिर उसके बाद अब मायोमेक्टमी स्क्रू डाल। वर्टिकल, अब वर्टिकल और जो बोनीज हुड है वो दो डिफरेंट चीजें हैं। मैडम बोनीज हुड तो ट्रांसफर्स में बनेगा। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपने हाँ, वर्टिकल की भी बात की, नहीं मैडम, बोनी हुड की भी मैडम बात। बोनीज हुड ट्रांसफर्स में बनेगा, जहाँ पे मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी मिल रही होगी फाइब्रॉइड की, हम्म। वहां पे देंगे उसको। बोनीज हुड की तरह से सेपरेट करेंगे सीरोजा को और मायोमीट्रियम की लेयर को, और फिर हम्म। हम मायोमेक्टमी स्क्रू के थ्रू जो है ना वो फाइब्रॉइड निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि उसका जो पूरा कैप्सूल है उसको इन्यूक्ले वो मतलब हमें हमसे इन्यूक्लेट हो जाए वो पूरा फाइब्रोमा फाइब्रॉइड एज अ कैप्सूल या फाइब्रोइड? कैप्सूल या फाइब्रोइड? फाइब्रॉइड जो मैडम जो फाइब्रॉइड का कैप्सूल होता है ना, तो वो अगर पूरा इनिक्लेट हो जाता फाइब्रोइड है के तो वो कितने कैप्सूल होते हैं? मैडम अगर अच्छा सही डेवलप हुआ फाइब्रॉइड होता है तो उसका पूरा इंटेक्ट एक कैप्सूल पूरा होता है उसके ऑल अराउंड। मैंने पूछा कि फाइब्रोइड के कितने कैप्सूल होते हैं। मैडम व्हाट इज ये मुझे सूडो कैप्सूल? व्हाट मैडम इज मुझे ये सूडो आंसर नहीं कैप्सूल? पता। मुझे नहीं पता ये आंसर। सूडो कैप्सूल नहीं पता? नहीं मैडम। एनीवन हु कैन आंसर इट? व्हाट इज द सूडो कैप्सूल ऑफ अ फाइब्रोइड, जिसका ध्यान हमने रखना होता है बोथ ऑन लेप्रोस्कोपी एंड ऑन लेप्रोटमी? जी, एनीवन? ना भी अगर ये देखा हो तब भी ये पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द सूडो कैप्सूल एंड नॉट टू रिसेक्ट इट। जी, एनीवन इन द ऑडियंस? ओके। सूडो कैप्सूल बेसिकली कंप्रेस्ड मायोमीट्रियम है ऑल अराउंड द फाइब्रोइड इटसेल्फ। क्योंकि बाद दफा ऐसे होता है कि जब आपने उसमें फाइब्रोइड में इंसिजन दिया
तो वो इंसिजन आपको बार दफा लगता है कि ये कैप्सूल आ गया, वो नहीं होता, वो कंप्रेस्ड मायोमीट्रियम होती है। सो यू हैव टू जस्ट टू गो डाउन मोर एंड मोर, जहां पे आपको फाइब्रोटिक वाइटिश सरफेस नजर आता है और हार्ट सा आपको बहुत क्लियरली फील हो जाता है कि अब हम फाइब्रोट के ट्रू कैप्सूल पे आ गए हैं। और ये क्यों जरूरी है टू रिस्टोर एंड टू टेक केयर ऑफ द सूडो कैप्सूल विच इज अ कंप्रेस्ड मायोमीट्रियम ऑल अराउंड द फाइब्रोइड। मैडम क्योंकि अगर ये रह जाएगी अंदर तो फिर वो दोबारा से रिकरेंस जल्दी होगी ना, तो हमें तो वो फाइब्रॉइड का ये रिकरेंस किसकी जल्दी होगी? रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड। ओके, एनीवन एल्स हु कैन आंसर इट? अब ये जो कंप्रेस्ड मायोमीट्रियम है, बेसिकली जैसे जैसे फाइब्रोइड बड़ा होता जाता है, इवन मोर देन 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद बाज दफा ये 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इतना होता है। ये कंप्रेस्ड, आप एक चीज को प्रेस करते जाएं, जितना ज्यादा करते जाएंगे वो डीजेनरेट हो जाएगी, उसका नेक्रोसिस हो जाएगा। और इसको सूडो कैप्सूल को एज इट इज, इसकी फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनैलिटी का मतलब यह है कि इसका बाद में पार्ट क्या है इन द रीजनरेशन ऑफ द मायोमीट्रियम वंस द फाइब्रोइड इज इन्यूक्लिएटेड फ्रॉम इट्स बेड। क्योंकि हम जब इसके ट्रू कैप्सूल तक पहुंचते हैं और उसके बाद फाइब्रोइड के निकालते हैं, सारी ऑल अराउंड इसकी अगेन ये सूडो कैप्सूल तो उसके सारे ऑल अराउंड होता है, सारे उसके छोटे छोटे फाइबर जो मायोमीट्रियम के कंप्रेस हुए होते हैं, हम उसका ध्यान रखते हैं। क्योंकि यही सूडो कैप्सूल कंप्रेस्ड मायोमीट्रियम ये है, ये दिस इज रिच इन द न्यूवेस्कुलर कॉम्प्लेक्सेस। और ये रीजनरेशन और रिकरेंस ऑफ फाइब्रोइड में इसका कोई पार्ट नहीं है, रादर इट हेल्प्स इन द रीजनरेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर मायोमीट्रियम। अगर हम इसको डैमेज कर देंगे तो जो मायोमीट्रियम की रीजनरेशन है या मायोमीट्रियम की अपनी फंक्शनैलिटी को रिस्टोर करने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए सूडो कैप्सूल को रिटेन करना, उसकी फंक्शनैलिटी को रखना बहुत जरूरी होता है। ये इसको, इसका खास तौर पे ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। मैडम दिस इज दो कंफ्यूजिंग मैडम, क्योंकि ये तो जो फाइब्रॉइड का ट्रू कैप्सूल है उसके इनर लेयर होगी ना, सूडो कैप्सूल की जो लेयर होगी। सूडो कैप्सूल फाइब्रोइड के इर्द गिर्द बाहर की तरफ होता है, उसके बाद हाँ। उसका ट्रू कैप्सूल आता है जो बड़ा फाइब्रोटिक होता है और हमें क्लियरली नजर आ जाता है। अगर तो आपने जीएनआरएच चैनलॉग्स दिए हों तो इन दो चीजों की डिफ्रेंसिएशन में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहां पे ये इसका जो कैप्सूल है वो उसकी बेसिकली जो मर्ज हो जाता है ये सराउंडिंग मायोमीट्रियम के साथ। तो वहां पे हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, अगरचे उसके बेनिफिट भी होते हैं कि साइज कम हो गया, इंसिजन छोटा देना पड़ेगा, वेस्कुलरिटी उसकी कम हो जाती है, ये सारा कुछ है। तो इसलिए इसको रिस्टोर रखना, इसको इंटीग्रेशन इसकी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रीजनरेशन पावर होगी मायोमीट्रियम की वो कम हो जाएगी जब हम उसको सूडो कैप्सूल को भी साथ ही निकाल रहे होंगे, यानी बहुत सारे जो मायोमीट्रियल फाइबर जो उसके इर्द गिर्द अटैच है वो भी उसके साथ ही निकल जाएं। तो इज इट मैडम क्लियर? तो फिर ये बहुत मैडम तो फिर इंपॉर्टेंट हमको चीज है मैडम मायोमेट्री में, तो ये बहुत मैडम इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जी मैडम ये तो समझ में आ गई ये बात, इंपॉर्टेंस ऑफ सूडो हाँ कैप्सूल, लेकिन जब हम हाँ, मैडम हमने मायोमेक्टमी स्क्रू को हमने स्क्रू करते हैं उसको राउंड एंड राउंड करते हैं, फिर हम मायोमेट्री स्क्रू जस्ट एट वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे वो मायोमेट्री हाँ स्क्रू मैडम अंदर उसको जाता है, थोड़ा उससे सा कोई इतना रोटेट, फर्क नहीं पड़ता, मैडम उससे उसको इतना थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ता। रोटेट करके हम जब अगर सूडो कैप्सूल तक भी पहुंच गए तो हमें हाँ, सूडो कैप्सूल को छोड़ देना है एंड मतलब छोड़ मायोमीडियम में। देना है सूडो कैप्सूल को, वहां हमने उसको बचाना है, उसको पीछे रिटेन रखना है सूडो ओके कैप्सूल को। ठीक है, और ठीक बात दफा ये मुश्किल होती है जो खास तौर पे जो न्यू लर्नर्स होते हैं कि मायोमेक्टमी में आपको सूडो कैप्सूल को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, और ये इतना मुश्किल काम नहीं होता। आपको बिल्कुल ग्लिसनिंग सरफेस पता चल जाती है, वाइटी सी पिंकी सी, और वहां पे आपको फर्म जो टिपिकल फर्म फाइब्रिड्स होते हैं उनमें तो ये डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान होती है। जो बहुत ज्यादा कोई नेक्रोटिक फाइब्रिड्स हों उनमें जरा मसला होता है, बट स्टिल यू कैन डिग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, क्योंकि फाइब्रिड के अगर फर्ज किया आप थोड़ा सा इनर पे भी चले गए, एटलीस्ट इट विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू। क्योंकि अगर आपने इसको निकाल दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो सूडो कैप्सूल, अब ये जो सूडो कैप्सूल है ये आउटर वॉल की तरफ कम होता है, सम म्यूकोजल फाइब्रोइड के गिर्द ज्यादा ये थिक हो जाता है।
यही सूडो कैप्सूल। तो हमें बाज दफा जो सब म्यूकोजल फाइब्रोइड है उसको निकालने के लिए एक थोड़ी सी मोटी लेयर के थ्रू जाना पड़ता है सूडो कैप्सूल की, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ द मायोमीट्रियम। तो वहां पे भी आपने इसका ध्यान रखना होता है। व्हाट इज ए जंक्शनल जोन? सूडो कैप्सूल के साथ ही एक और भी चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, जंक्शनल जोन, स्पेशली इट हैज रिलेशन विद द सब म्यूकोजल फाइब्रोइड्स अप टू फीगो 3। फीगो 3 तो सिर्फ टच कर रहा होता है ना, वो उसको उसमें प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होता, उसको टच कर रहा होता है, माइल्ड सी इंडेंटेशन बाल दफा हो सकती है। तो जंक्शनल जोन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इनफर्टिलिटी में, और इसको हम क्या हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए ड्यूरिंग मायमेक? व्हाट इज द मैडम जंक्शनल जोन बेसिकली? मैडम जंक्शनल जोन तो एंडोमीटियम और मायोमीटियम का जो जंक्शन होता है, दरमियान होता है। एंडोमायोमीटियम आप उसको रफली कहते इसको यूं कह लें कि जितनी मायोमीट्रियल थिकनेस होती है ना एक यूट्रस में, ये उसका इनर 1/3 होता है जंक्शनल जोन। हैं जी। जंक्शनल जोन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल और इंपॉर्टेंस? मैडम इम्पोर्टेंस मैडम इसकी ये है कि जो है वो अगर ऑल्टर्ड जंक्शन जोन होता है, मतलब इरेगुलरिटी ऑफ जो जंक्शन जोन होती है ना, वो जो होती है वो फर्टिलिटी को इम्पेयर करती है। जैसे एंडोमेट्रियोसिस में या अडिनोमायोसिस में जो जंक्शनल जोन की रेगुलरिटी है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो इरेगुलर हो जाती है वो लाइन। तो मैडम इतना ही पता है मुझे इसका कि इसकी ये सिग्निफिकेंस अब होती है कि ये जो जंक्शनल जोन है ना, ये भी एंडोमेट्रियम की तरह ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिस्पॉन्सिव होता है, इसमें ये रिसेप्टर्स भी होते हैं। और यही वो जंक्शनल जोन है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट होती हैं जब विद द सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड एंड विद द इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड इसकी थिकनिंग हो जाती है। एबनॉर्मली थिकन जंक्शनल जोन जो है ये प्रेगनेंसी फेलियर, इम्प्लांटेशन फेलियर कर सकता है, बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन द मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड द हार्मोन मिलियो ऑफ द एंडोमेट्रियम, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी। ठीक है, ये उन चीजों को भी अफेक्ट करता है। अब जब हम बात करते हैं ना कि मायोमीट्रियल इंट्रामायोमीट्रियल फाइब्रॉइड हम निकालें या ना निकालें, तो वहां पे इसको भी हमें जहन में रखना चाहिए, बिकॉज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के बारे में हम 100% नहीं हैं कि ये इनफर्टिलिटी की वजह बन रहा है या नहीं बन रहा, बट ऑन जनरल ग्राउंड्स, मतलब अब जब बात आती है कि आखिर फाइब्रॉइड फर्टिलिटी को कैसे इम्पेयर करता है, तो वैसे सबम्यूकोजल कैसे करता है? मैडम सब म्यूकोजल जो है वो तो वो तो पूरी जो आपकी हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है तो उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो उसमें इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, और इसमें रिकरेंट मिसकैरेजेस, और जो है वो इम्प्लांटेशन फेलियर और रिकरेंट मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं सब म्यूकोजल में। नहीं नहीं, वो तो होते हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर भी है, सब कुछ है सर, लेकिन कैसे? मैं मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ। मैडम वही जो आपने बताया कि इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो रिसेप्टर्स होते हैं एंडोमेट्रियम के ऊपर, उसमें ही अब मैडम देखो इसमें एक तो चीज होती है कि ये सब एंडोमेट्रियल जो बाकी हैं ये इंट्रामायोमेट्रियल, एक तो एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन करते ही करते हैं। इट कैन इवन कॉज फेलोपियन ट्यूब, अगर वो किसी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के साथ ये अटैच्ड हैं या उसके ऊपर वो स्ट्रेच हो रही है, तो उसका ब्लॉकेज भी हो सकता है। लेकिन अदरवाइज सर्वाइकल और इंट्राम्यूरल दे दे बेसिकली डिस्टर्ब द स्पर्म मूवमेंट और एम्ब्रियो मूवमेंट भी। अगर और दूसरी चीज ये कि जो सब म्यूकोजल हैं दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, ये एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द सेक्शन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। लेकिन ये वो वाला फैक्टर है, जस्ट लाइक पॉलिप एंड एंडोमेट्रोसिस भी, कि जो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को इफेक्ट करता है। The endometrium is no more very favorable receptive to the incoming embryo even, तो ये उसमें चेंजेस करता है। और दूसरी चीज ये है कि जो मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो भी डिसरप्ट होती हैं विद द सबम्यूकोजल विद द इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड्स, बिकॉज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द जंक्शनल जोन। अब जो क्योंकि जो ओरिजिनेट करती हैं कॉन्ट्रैक्शंस, वो उसमें नॉर्मली जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये थ्रू आउट मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चल रही होती हैं, मतलब इन बिटवीन इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड में भी। तो जो पेरी ओव्यूलेटरी फेज है इसमें ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये नीचे से ऊपर होती हैं, और जो पोस्ट ओव्यूलेटरी है वो ऊपर से नीचे होती हैं।
अब ये सारी डिस्ट्रप्शन हो जाती है, क्योंकि फाइब्रोइड के साथ अगर होगा तो ये जो मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये बेसिकली ज्यादा बढ़ जाती हैं इन द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जो कि डिस्टर्ब कर सकती हैं फॉर द इनकमिंग एम्ब्रियो एंड द स्पर्म्स, जो और इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, सो फ्रीक्वेंसी एंड द डायरेक्शन इज चेंज, and moreover it also disturbs the hormone milieu of the endometrium, making it the more unreceptive for the incoming embryo. Is it clear कि फाइब्रोइड का यहाँ पे रोल क्या होता है? दूसरा ये कि मायो हाइपरप्लेजिया तो करना ही करना होता है, इससे वेस्कुलरिटी जो है वो चेंज हो जाती है, एंडोमेट्रियम की हम बात कर रहे हैं, और इससे जो बाकी जो इसका इम्यून जो होते हैं इसके सारे सेल्स वगैरह वो भी चेंज हो जाते हैं, उनका भी सारा जो है वो रेशोज चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी के साथ डिस्कस करेंगे, बट द फाइब्रोइड्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल ऑफ दिस। तो उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फैक्टर बन जाता है जो कि इनफर्टिलिटी कर सकता है। तो इस चाहे उसके सिम्टम्स और ना भी हों, चाहे उसे मेनोरेजिया ना भी हो, चाहे उसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना भी हो, तब भी ये सारी चेंजेस हो सकती हैं। सो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट इसकी एआरटी ट्रीटमेंट है या स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन भी है, उसके लिए फिर इनको निकालना जरूरी होता है, क्योंकि इनका साइज आर मोर इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर्स में आ जाते हैं उसके डेफिनेट एज होती है, फिर उसकी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं जो कि इसमें एक फैक्टर बन सकती हैं इसके डिसीजन में। और एज तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी यंग एज है और डिलेट इसकी मतलब सब फर्टिलिटी तो है ही है, और इसमें हस्बैंड का सेमन एनालिसिस ठीक है। इसलिए अब इसमें जो हम मायोमेट्रियल इंसिजन देंगे, जैसे कि आसिया आप बता रहे थे, तो वो हम इन ऑन द मोर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फाइब्रॉइड, कॉटरी कम से कम, सुचर जो है वो आप छोटे कैलिबर का इस्तेमाल करते हो, यू एंश्योर द हेमोस्टेसिस लेटर ऑन, ठीक है, क्योंकि अब हमने कम से कम दो फाइब्रॉइड को तो निकालना है इस तरीके से, सब एंडोमेट्रियल एंड दिस इंट्रामायोमेट्रियल। और ये अब उसमें मसला ये है कि ये इंटीरियर वॉल पे है, सब एंडोमेट्रियल पोस्टीरियर वॉल पे है। हाउ यू विल टैकल विद दिस? हम सब सिरोजल को भी भूल रहे हैं क्योंकि वो निकालना मुश्किल काम नहीं है, वो आप निकाल लोगे, मसला इन दोनों मैडम का। मैडम जो इसमें आपने 2 स्टेप बताया था ना, फर्स्ट स्टेप प्रोसीजर में तो पहले हम नहीं वो हिस्टेरोस्कोपिकली। हम हिस्ट्रोस्कोपी के साथ 2 स्टेप हम कर रहे हैं ना, तकरीबन हाँ मतलब मुश्किल होगा 5 सेंटीमीटर का सब एंडोमेट्रियल निकालना, लेकिन सपोज हमारे पास हिस्ट्रोस्कोप नहीं है, फिर क्या मैडम करोगे? मैडम फिर तो डिफिकल्ट सर्जरी है, क्योंकि हमें फिर एंटीए वॉल को भी हम इस तरह से खोल रहे हैं और पोस्टीरियर वॉल को भी खोल रहे हैं। और हम्म। फिर हम जो जो एंटीए वॉल खोल रहे हैं तो वो तो चलो फिर भी हम कम खोलेंगे कि वो हमें बाहर की तरफ मिल जाएगा फाइब्रॉइड, लेकिन पोस्टीरियर हम्म। वॉल के तो जो हमें पूरा अंदर एंडोमेट्रियम तक जाना पड़ेगा। हम्म। फिर क्या करें? क्या पेशेंट मैडम को रेफर कर दें? नहीं मैडम, ये तो आप Actually, ही बताएंगे। मैडम ऐसी तो मैंने कभी भी सर्जरी ऐसी नहीं देखी। लेकिन हो तो सकती है, ये मैडम तो हो कोई तो गारंटी नहीं है ना कि सब एंडोमेट्रियल और जो इंट्रामायोमेट्रियल है वो एक ही लाइन में पड़े हों ताकि सर्जन को मुश्किल ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और मैडम फिर इसमें तो ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाएगा और फिर एक्सपर्टीज भी बहुत डेफिनेटली। ज्यादा होनी चाहिए। और हाँ, ये तो बहुत हाई जब रिस्क। हमें पता है कि इसमें ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ेगा तो हम टॉर्निके क्यों नहीं लगा लेते? जी मैडम। ये ना ठीक है। जी। अब देखो मायोमेक्टमी को अगर हम एज इट इज डिस्कस करें तो उसके भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसकी इंसिजन कौन सी होनी चाहिए, उसमें हीमोस्टेसिस कैसे आपने करनी है, और उसमें ब्लड लॉस को आप मिनिमाइज कैसे करोगे, वेजोप्रेसिन इंजेक्शन भी आप अराउंड द जो इंसिजन आपने देनी है फाइब्रोइड में वहां पे लगा सकते हो, आप उसको टॉर्निके लगा सकते हो, आप उसको इवन माइजोप्रोस्टॉल भी दे सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिसेबल है। और दूसरी चीज ये है कि अब चूंकि एक एंटीरियर वॉल पे है इंट्रामायोमेट्रियल और दूसरा पोस्टीरियर वॉल पे है, तो क्या ऐसे करोगे कि इंटीरियर वॉल के फिर थ्रू एंड थ्रू यूट्राइन कैविटी जाके उसमें से निकालोगे, या पोस्टीरियर वॉल का अलहदा से करोगे? या कोई भी और हमारी ऑडियंस में से जो इसका जवाब देना चाहे। मैम इस पे ऐसा नहीं हम कर सकते कि जीएनआरएस दे के पहले 3 मंथ्स के लिए इसको साइज रिड्यूस करें और पोस्टीरियर वाल वाला सेपरेटली स्मॉल एंड सीएन से पोस्टीरियर वाल से ही निकालें इसको? मतलब होने को तो हो सकता है,
देखो ये तो हमने बात की भी है कि हम इसको GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो फर्ज किया हमने कि फिर भी अगर इंसिजन देना ही है तो उसमें जाहिर है अब 5 सेंटीमीटर का है, वो स्टिल इट कैन बी टेकन आउट थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। जब आप उसको मतलब उसके स्क्रू लगा के, छोटा स्क्रू लगा के आप निकालते हो तो वो हो तो सकता है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। और GnRH एनालॉग्स का ये भी फायदा होगा कि मतलब कि उसका साइज तो रिड्यूस होता है, ब्लड लॉस भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों उसकी पॉसिबिलिटीज है, दिस इज वन ऑप्शन। लेकिन अगर हमें ऐसे ही करना पड़े तो हम एंटीरियर वॉल से जो है वो हम पोस्टीरियर वॉल वाले को अप्रोच करेंगे, हम उसको यानी हम पोस्टीरियर। पूरी यूट्रस को काट देंगे, अंटीरियर से लेके नहीं पोस्टीरियर। मैडम, इसमें हम बॉलीवुड वो इंसिजन देते हैं, वो सूडो कैप्सूल बना के तो दोबारा उसको कर देते, पिछले एक लेक्चर में आपने बताया था। बेटा बॉनी होड तो एंटीरियर वॉल पे है, जिसने एंटीरियर वॉल फाइब्रोइड निकाल दिया। How you will go through the Bonney's hood incision, because that is in interior wall, and definitely to go to the posterior wall fibroid, अगर बॉनी हुड के थ्रू ही जाना है तो पहले एंटीरियर वॉल की एंडोमीटियम को काटो, फिर पोस्टीरियर वॉल की काटो और फिर उसमें से निकालो। तो ये नहीं तो मैडम, ज्यादा ये खतरनाक होगी। बहुत, ये पोस्टीरियर वॉल वाला तो बोनी हुड से थोड़ी जाएगा, क्योंकि ये हाँ फीगो वन उससे है। नहीं निकलेगा। ये ये इसमें तो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इंटीरियर वॉल का बॉनी हुड से निकालोगे। क्योंकि वो ठीक है, फीगो वन है, वो तो सारा का सारा जो है वो एंडोमीट्रियम की तरफ है ना, वो तो अंदर एंडोमीट्रियम की। की तरफ है। तो इसमें आइडियल बेसिकली है ही हिस्ट्रोस्कोपिक, लेकिन अगर वो अवेलेबल ना हो, यू गो थ्रू अ सेपरेट पोस्टीरियर वॉल इंसिजन। पोस्टीरियर वॉल इंसिजन प्रेफरेबली इसलिए अवॉइड किया जाता है कि ओवरीज आर जनरली एनाटॉमिकली इंक्लाइन टू द पाउच ऑफ डगलस पोस्ट इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। और उसके साथ ही वो होती हैं फिलोपियन ट्यूब्स भी होती हैं जो कर्ल करके फाइव ओवरीज के ऊपर फैली हुई होती हैं। उसका फेमरियल एंड जो फिलोपियन ट्यूब्स का है, तो इसके इस तरह से उसमें एडहेजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट स्टिल फॉर दीज ट्रिकी केसेस यू कैन गिव अ स्मॉल इंसिजन इन द पोस्टीरियर वॉल एंड देन यू गो थ्रू द मायोमीट्रियम इनटू द दिस फीको वन। ये एक डिफिकल्ट अप्रोच होगी। ठीक है, ये एक डिफिकल्ट अप्रोच है और उसमें जो है वो नॉट अ फेवरेबल रिपोर्ट अप्रोच, क्योंकि ये फिर हम इसको जो है वो हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए निकालना इसमें ज्यादा फिजिबल होगा। अगर एक्सपर्टीज अवेलेबल हों तो वो फिर ज्यादा बेहतर, या फिर इसको हम दूसरे तरीकों से निकाल सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, कि हम इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो फोकस्ड वो वेव्स होती हैं उसके साथ MRI गाइडेड वो, लेकिन जहाँ पे अवेलेबल हो फिर वो वहीं पे हो सकता है। मसला फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी का होता है, एक आइडियल सिचुएशन है, एक लेस आइडियल सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें हमने अब हमने इसमें जो है वो, इसमें अब यहाँ तक तो कोई ऐसी क्वेरीज या कुछ नहीं है। मैडम इस पेशेंट में फिर अगर ओवरऑल एसेस करें मैडम, तो इस पेशेंट का तो फिर आइडियल सिनेरियो यही बनता है कि इसको हम, अगर हमारे पास एक्सपर्टीज अवेलेबल है और हमारे सेटअप में ये MRI फोकस्ड अल्ट्रासाउंड जो बीम्स है इसकी फैसिलिटी है, हाँ तो पहले तो फिर हम एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों को इस सोनाटा टेक्निक से डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करें, और फिर उससे वो जब वो नहीं, मैक्सिमम देखो सोनाटा टेक्निक से उसमें आप डीजनरेशन ऑफ फाइब्रोइड कर रहे होती है, फाइब्रोइड निकाल नहीं रहे होते हो। उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, हम इस सिर्फ डिफिकल्ट अप्रोच वाले को निकाल रहे हैं। और ये सोनाटा टेक्निक होती ही थ्रू विजाइनल रूट है, जो कि फीगो 101 के लिए होती है ज्यादातर, और फीगो 2 समटाइम्स। तो सोनाटा टेक्निक इंट्रामायोमीट्रियल के लिए फिजिबल टेक्निक नहीं है। उसको बाद दफा अगर हमने करना भी हो तो हम लेप्रोस्कोपी के जरिए जो लेजर के साथ जो उसकी मायोलाइसिस हमने करनी होती है वो क्योंकि ये जब हम चीजें कर रहे होते हैं तो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, विजाइनल डिस्चार्ज, एडिशन फॉर्मेशन, ये सब चीजें अपनी जगह हैं। अब फीगो 1 तक तो मजबूरी है, फीगो 2 पे भी ऐसी मजबूरी नहीं है। बाकी जो फीगो 0 है वो तो वैसे भी पेडंकुलेटेड होता है, उसको तो वैसे भी पॉलीपेक्टमी की तरह से आप निकाल सकते हो। तो मसला फीगो 1 का होता है जो 50% से ज्यादा प्रोट्यूट कर रहा है, बट स्टिल द बेस इज इन द मायोमीट्रियम। तो वहां पे हमें ये हिस्ट्रोस्कोपी या फिर सोनाटा टेक्निक, ये सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जो हमने डिटेल में अभी देख लिए, इंक्लूडिंग द एशरमैन सिंड्रोम एंड विजाइनल डिस्चार्ज एंड इन्फेक्शन एंड ऑल दैट। ठीक है,
तो ये तो हो गया। अब इसमें ट्यूबल पेडेंसी आपने चेक कर ली। अब इसमें एडनेक्सा के बारे में जो मैंने कहा था कि टेंडरनेस है, यू विल हैव अ लुक एट द एडनेक्सा। तो एडनेक्सा में आपको मिलती है एक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर। मैडम उसको ऑन द राइट साइमल्टेनियसली साइड, ऑन द रिमूव राइट साइड। करेंगे। मैडम उसको साइमल्टेनियसली रिमूव करेंगे और दूसरी ओवरी और दूसरी ट्यूब्स को भी इंस्पेक्ट करेंगे केयरफुली फॉर एनी प्रेजेंस ऑफ एनी सिस्ट। तो ये सारे काम करके फिर आप उसको वो करोगे, ठीक है। देन हाउ मच टाइम यू विल गिव हर फॉर द अटेम्प्ट ऑफ, या स्पॉन्टेनियस करना है या आपने जो भी उसका करना है उसको कितना टाइम दोगे आफ्टर डूइंग दिस सर्जरी? मैडम 6 months एटलीस्ट। 6 months एट लीस्ट, 28 years है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम आप नहीं दोगे। देन विल यू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर IUI और IVF, या उसको आप स्पॉन्टेनियसली कंसेप्शन का चांस दोगे? बिकॉज हस्बैंड सीमन एनालिसिस इज ओके, देयर आर नो मैडम फर्स्ट 3 months स्पॉन्टेनियस के लिए मैं उसको दूंगी, लेकिन अगर उसने फर्स्ट 3 months नहीं कंसीव किया देन आई विल गो फॉर 1 cycle IUI एंड देन आई विल प्रोसीड विद IVF। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम कंक्लूड करते हैं। एनी क्वेश्चन जी? मैम इसमें क्योंकि हम ये कोई ऐसी सॉरी रेयर सिचुएशन नहीं है जो है इनफर्टिलिटी विद द फाइब्रॉइड्स, लेकिन इसको बड़ा टेक्निकली मैनेज करना होता है। आपने ये डिसाइड करना होता है व्हेन टू टेक आउट द फाइब्रॉइड्स। तो व्हेन टू टेक आउट द फाइब्रॉइड्स डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। पेशेंट की एज है, सिम्टम्स हैं, फिर उसके अलावा उसकी जो प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी हैं वो तो ज़्यादा एज वाइज होती हैं, और कोमॉर्बिडिटीज भी। क्या किसी की प्रीवियस सर्जरी बहुत हुई है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी चीजें हैं जो कि डिसीजन को करती हैं। साइज एंड लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर कि इसमें आप कर लें। और जहाँ पे इफ द पेशेंट इज एट एन एडवांस स्टेज 40+ years में, तो वहाँ पे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का भी एक आ जाती है चीज, अगर हमने उसको किसी और ऐसे तरीके से मैनेज करना हो तो। क्योंकि जाहिर है उसमें ओवास विद द पासिंग एज आर बेसिकली बीइंग डिग्रेडेड क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, तो उनके प्रिजर्वेशन का भी इसमें एक रोल आ जाता है। सो बेसिकली इन द एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप, साइज एंड साइट ऑफ द फाइब्रॉइड कि इस मरीज में ये करने से कितना फायदा होगा। ऑन एवरेज ग्राउंड अगर तो फाइब्रॉइड्स 4 से कम है, 3-4 से कम है, तो फर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी अगर वो 3-4 से कम है तो फर्टिलिटी होने के चांसेस तकरीबन 65-75% तक हमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, more than 10, तो फिर उसमें चांसेस अमूमन नहीं होते, चांसेस बहुत कम, मिनिमल होते हैं। और अगर एक सिंगल फाइब्रेट हो तो डेफिनेटली उसमें चांसेस और भी बढ़ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन ऑल अदर फैक्टर्स के। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी तो नहीं है, या कोई ट्यूबल फैक्टर तो नहीं है, या इसमें कोई को एग्जिस्टेंट एंडोमेट्रोसिस तो नहीं है। ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस करेगा। अगर को एग्जिस्टेंट एंडोमेट्रोसिस है तो उसकी मैनेजमेंट अमूमन फर्टिलिटी की मैनेजमेंट के साथ टैली नहीं करती। बट इफ यू आर डूइंग सर्जरी फॉर फाइब्रॉइड तो डू सर्जरी फॉर द कोएग्जिस्टेंट एंडोमेट्रोसिस एज वेल, ताकि आपको उसके लिए कलैदा से ट्रीटमेंट ना देनी पड़े, एंड यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी सम टाइम आफ्टर द सर्जरी विच वी हैव डिस्कस के कम से कम 6 month हम उसको दे दें। तो उसके बाद हमने उसको मतलब कर देना होता है, ट्रीटमेंट पे स्टार्ट कर देना होता है, ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं कि ये क्या, लेकिन ये सवाल जरूर होता है कि हाउ इट कॉज इनफर्टिलिटी, और कौन सा फाइब्रॉइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं इसमें जो हम कर सकते हैं, एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द ऑनवर्ड फर्टिलिटी, यानी डिफरेंट टेक्निक्स का इफेक्ट ऑन द फर्टिलिटी भी ये डिस्कस होता है हिस्ट्रोस्कोपी से या लेप्रोस्कोपी से या लेप्रोटमी से। लेप्रोस्कोपी लेप्रोटमी के रिजल्ट अमूमन मिलते जाते हैं, लेकिन बीइंग मिनिमली इन्वेजिव, लेप्रोस्कोपी का जो पोस्ट ऑफ रिकवरी पीरियड है या टाइम है या उसके सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन उसमें बहुत मल्टीपल फाइब्रेट के साथ हम नहीं कर सकते, बड़े साइज के फाइब्रेट के साथ
लेप्रोस्कोपी इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जो मायोमीट्रियल वीकनेस है वो रह जाती है। क्योंकि हम जो जिस तरह से हम मायोमीट्रियम को रिस्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन द ऑनवर्ड मायोमीट्रियल इंटेग्रिटी इन द फ्यूचर प्रेगनेंसीज। तो ये चीज़ है जो कि हमने इसमें कंसिडर करनी होती है। तो इसमें और कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो आज का फिर हम सेशन क्लोज करते हैं, एंड वी विल मीट आफ्टर द ईद्स। ठीक मैम है। इसमें जैसे कि इन्होंने बताया आसिया ने कि वो 3 मंथ वेट के बाद 3 मंथ उसको नेचुरल कंसेप्शन के लिए करेंगे, उसके बाद जो है वो हम कर आईयूआई पे सकते हैं, जाएंगे। देखो ये दिस विल डिपेंड अपॉन द पेशेंट। अभी ये 28 की है, बाद में ये 29 की हो जाएगी, सो द इयर्स आर पासिंग बाय। तो उसके साथ जैसे जैसे आगे एज जाती जाएगी उसमें फर्टिलिटी या बेसिकली ओवेरियन रिजर्व और गैमीट की क्वालिटी, ये सारी चीजें अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। और अब तो ये चीज हम बहुत ही देखते हैं। हम्म। मैम लेकिन डायरेक्टली हम आईयूआई पे जाएंगे, हम ओवुलेशन इंडक्शन नहीं देंगे पहले उसको? हाँ, तो मतलब देखो, ओवुलेशन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि हम कोई इंटरवीन नहीं कर रहे सिवाय इसके कि ओवुलेशन इंडक्शन देते हैं। अगर ये भी एआरटी में ही आ जाता है, लेकिन जी आईयूआई जी तो फिर एक इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट हो गई ना। तो हम उसको जी। डेफिनेटली ओवुलेशन इंडक्शन, जायरे फॉलिकुलर ट्रैकिंग और ये सब कुछ तो हमने देखना ही है। और ये सारा कुछ देखने के बाद, और उसमें वैसे भी ये एडवाइजेबल है कि आप इवन ट्यूबल पेटेंसी को भी रीचेक करें कि कहीं एडहेजन्स तो नहीं बन गई, स्पेशली अगर आपने पोस्टीरियर इंसिजन दिया हो तो। ठीक है, तो वो भी रीचेक करके तो फिर आप उसमें वो करते हैं। और अगर फर्ज किया, अब जाहिर है हमने फाइब्रोइड तो निकालना ही निकालने हैं, चाहे अगर फिलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज इन रेयर केसेस अगर फर्ज किया हो भी गया, तो एटलीस्ट वी हैव क्लियर्ड द यूट्रस ऑफ द फाइब्रॉइड्स विच कैन इंटरफेयर विद द आईवीएफ सक्सेस। तो आईवीएफ की सक्सेस भी तो इससे इफेक्ट होती है, इसलिए हमने फाइब्रॉइड को निकालना ही निकालना है। मैडम मैम मैडम मैम ओवरऑल एक और क्वेश्चन था कि जो मैडम लिपिस्टालिस स्टेट है मैम, वो दे सकते हैं जीएनआरएस एनालॉग की बजाय? मैम हाँ, वो उसकी तो ये तो हमने अगर बात की है ना कि हम जेएनआरएच की डेफिनेटली रोल इसमें है, और वो रोल होगा सब म्यूकोजल में और इंट्रामाइमेट्रियल में। सब सिरोजल में अमूमन इसका इतना रोल नहीं होता जीएनआरएच एनालॉग्स का, लेकिन सब सिरोजल वाला हमें इतना मसला भी नहीं कर रहा होता। वो सिर्फ ज्यादा अगर बड़ा हो तो वो उस आइटरेटिवल में टेक्निकल डिफिकल्टीज कर सकता है, इसलिए हम उसको फिर निकाल देते हैं। मैडम एक और बात मैडम कि यूरोपिस्टॉल एसीटेट का तो ये भी होता है कि उसके साथ दो इश्यूज होते हैं। नंबर वन, एक तो वो पाकिस्तान में एक नॉन अच्छा, अवेलेबिलिटी और इसकी इसकी बात कर रहे थे, मैं समझी शायद जीएनआरएच की। हाँ, यूलिप्रिस्टल एसीटेट बेसिकली हम 3 मंथ साइकिल के हिसाब से दे रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो एक जिससे एफडीए ने इसको बैन किया वो ये था कि इसमें लिवर टॉक्सिसिटी, इवन लिवर फेलियर तक के केसेस देखे गए। और इसका जो इफेक्ट है वो समझो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बराबर बराबर ही है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा हैं। तो इसका जो रोल है वो एक फॉर टाइम बीइंग ये डेफिनेटली था, लेकिन अब इसका इतना रोल अब नहीं रह गया बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक इफेक्ट्स। मैडम हम्म। मैडम हमारे एग्जाम में क्रूकनबर्ग ट्यूमर आया है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम आया है। अच्छा, नहीं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन प्रेगनेंसी? जी मैडम। ओके, तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, ये इवन रीनल फेलियर भी, रीनल ट्रांसप्लांट जी भी इन प्रेगनेंसी। ठीक वो है। तो मैडम किए हुए थे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं किया हुआ था। तो वो फिर सारा कुछ ही करना चाहिए ना, नेफ्रोटिक जी सिंड्रोम भी हो तो सकता है। तो नेफ्रोटिक जी। और कौन सा कह रही हो, बता रही हो? क्रूकनबर्ग ट्यूमर। ब्रूकनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। मतलब ये थोड़े से जरा रेयर केसेस हैं, लेकिन वही जी बात है ना, बाज दफा आप रेयर केसेस तो देख ही रहे होते हैं। जी। जी मैडम, फिर कभी कोई क्लास रख लें इस पे प्लीज। हाँ ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ, तो इस काम पे कर फिर हम लें जी। क्लास रख लेंगे, ठीक है। कौन पूछता था ये? चलें जी, हम बंद करें बस अब। मैडम बस ठीक एक है। लास्ट एक बात बता दें मैडम कि हाँ ना जी। जो है वो ओवरऑल जो इम्प्रेशन मुझे समझ आया है कि अगर हमारे पास पेशेंट फाइब्रॉइड की आई है विद मल्टीपल फाइब्रॉइड्स और उसका फर्टिलिटी मेन इशू है, तो जो आइडियल अप्रोच सर्जरी की होनी चाहिए वो ओपन मायोमेक्टमी होनी चाहिए रादर देन लेप्रोस्कोपिक। देखो, लेप्रोस्कोपी मैं वही बात कर रही हूँ ना कि लेप्रोस्कोपी की कॉन्ट्राइंडिकेशन में मोर देन 4 और बड़े साइज का फाइब्रॉइड ये हैं, और जो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं वो डिफरेंट साइट्स पे हों, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाता है।
क्योंकि अगर फर्ज किया इंटीरियर वॉल में ही 3-4 फाइब्रेट सिर्फ इंटीरियर वॉल में ही है, तो वो आप एक इंसिजन से निकाल सकते हो। सो प्रॉब्लम विल नॉट बी मच। लेकिन अगर फर्ज किया कोई फंडस पे है, कोई सर्विक्स के पास है, कोई पीछे पोस्टीरियर वॉल में 2 हैं, कोई इंटीरियर वॉल में 2 हैं, तो फिर तो आपको मल्टीपल जगहों पे इंसिजन देने पड़ेंगे। ठीक है मैडम। तो उसमें उसमें जो है वो फिर जाहिर है जो आप लेप्रोस्कोपी से भी कर रहे होते हो। अब आई एम नॉट श्योर कि उसमें कितना को आप स्ट्रांगली मायोमीट्रियम को अप्रोक्सीमेट करते हैं, या उसमें जो सुचरिंग होती है। आई थिंक इट इज एडिक्वेट, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो मैम इसमें लेप्रोस्कोपी के लिए कहा मैं जाता है कि एक लेप्रोस्कोपी की बात कर सेंटीमीटर रही से हूँ जी। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तब कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाँ, लेप्रोस्कोपी वही की। मैं कह रही हूँ ना, बड़ा फाइब्रॉइड मोर देन अच्छा 4 इन डिफरेंट साइट्स, तो ये ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आ जाता है। ठीक है, ठीक है अदरवाइज हाँ लेप्रोस्कोपी जी। से तो अब सारा कुछ ही हो रहा है, तकरीबन सारा कुछ ही हो रहा है। ठीक है, और ज़ाहिर है कि मिनिमली इन्वेजिव है, उसके अपने फायदे तो हैं। ठीक है मैम। मैम ठीक इसका जो है। कंक्लूजन है वो यही है कि आइडियल सिचुएशन में हम स्टेरोस्कोपिकली रिमूव करेंगे एंड देन पोस्टीरियर इंसिजन से हम पोस्टीरियर वॉल वाला लेंगे। हाँ, क्योंकि उसके लिए और जो फिर पूरा डेप्थ में हमें जाके निकालना पड़ेगा, वो चीज़ जरा ठीक है, बाईपास हो जाएगी। अगर आइडियली नहीं है तो इंटीरियर अलग इंसिजन होगा, हम्म, पोस्टीरियर अलग। हाँ पोस्टीरियर, क्योंकि आप इंटीरियर जी से ही तो सारा पीछे नहीं जा सकते हाँ ना। जी 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 ठीक है मैम। चलें जी, ओके, अब हम क्लास हाँ बंद जी करते हैं, इंशाल्लाह वी विल मीट थैंक यू आफ्टर मैडम। ईद। थैंक यू मैडम। मैडम आपका थैंक ओके यू शुक्रिया सो अदा मच। करना था मैडम। जी जी। मैडम आपका शुक्रिया अदा करना था। मेरा मैं नाजिश फातिमा हूँ। मैंने आपको बहुत सारे केसेस प्रेजेंट किए हैं और मैं पास हो गई हूँ। अच्छा, ओ ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जितने भी पास हुए हुए हैं सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक। ठीक है, वी आर रियली हैप्पी, जब आप लोग मुबारक। पास होते हो तो समझो हम लोग पास हो जाते हैं। जी ठीक है। मैडम, आपके सारे लेक्चर्स जो है वही लिंच सिंड्रोम आया था मेरे डे पे, तो मैंने अच्छा। वही सारी आपको काउंसलिंग उनको की थी। और वेजिनिस्मस था। हाँ, लिंच और सिंड्रोम तो हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। जी ठीक। मैडम, 1.5 घंटे का आपने पढ़ाया था। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने कवर किया था। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू मैडम। ओके। जजाकिल्लाह। अल्लाह हाफिज।